सत्यम राय, सत्यम राय, श्वेता सोनी, लवली शर्मा। श्वेता है? आप लोग हाथ ऊपर करो नहीं तो मिक्स हो जाएगा, एब्सेंट में चला जाएगा आपको। लवली शर्मा, अर्जुन सोलंकी, आइए सर वहां पे करिए लिस्ट में। चित्रा कुमार, लैबा साहिद, चित्रा कुमार साइन करिए। लैबा साहिद, निखिल नरूला, निखिल नरूला, निखिल नरूला हैं? मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्रा, आइए। संदीप कुमार, सन ऑफ राजेंद्र सिंह, आइए। राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, उल्लास, उल्लास है ना? हितेश साहनी, ओम प्रकाश मिश्रा, प्रेरणा, प्रेरणा, जमीर अहमद, मोहित अग्रवाल, मोहम्मद रागिब आलम, आइए। जुनैद अहमद खान, जुनैद, मोहम्मद रेहान मंजर, आइए। जय बिना मन में कम सरनाम परवीन, सरनाम कुमारी रंजना, उन लोगों से आगे आइए, आगे आ जाओ भाई। बैठिए आप लोग, बैठिए। अभी फ्रंट रो की कुर्सियाँ खाली हैं। पीछे से आओ, इधर कुर्सी देखो, फ्रंट की चेयर खाली। And first of all, I'm introducing the members of Enrollment Committee. Sri R.S. Goswami ji, Chairman Enrollment Committee. Kindly applaud. Senior member Sri Rakesh Sehrawat ji. And myself, Kumar Mukesh.
of you are here with the motto, motive, mood to get yourself enrolled today itself. Isn't it? All of you have passed your 3 years and 5 years course. There, how you devoted your time in your classroom or how you had interacted with the teachers, I do not know. But here, your life will begin afresh. In this profession, by chance or in compulsion or with a career motive, there are all categories here. Somebody after retirement. The basic thing, those who are freshers, after completion of 3 or 5 years, regularity in the education without any gap. Perhaps I understood, all are very serious and want to pursue your career in advocacy in any part of the country. So what we have to inculcate in ourselves is, the only mule mantra is a discipline. First discipline ourselves, only then we can teach for discipline for anyone else. Thereafter, patience. In this profession, you require patience to the extent you can't imagine. From 1 year to, just you have spent 1 year, thereafter you will come in second year. There is a gap of only 1 year. Here, for a patience, there may be a large number of years. The initial 3 years, 5 years, we will have to devote the time in learning. In the colleges, we have learned the substantial part, very less procedural part. ठीक है ये? Yes, sir. Procedural part क्या है? What is the procedural part? Which we have to learn, which we have not learned even in a moot court. There is a problem based, there will be a problem, you will have to analyze the problem. What are the law applicable in that problem? What are the ingredients of a offense? Which section attracts? You simply drafting your complaint, you will have to take care which offense are to be, what are the contents to be added in the complaint so that it constitutes the offense. So we will have to take care to that. There must have been a pleading part in your academic course. है कोई academic pleading पढ़ा है कोई? बिल्कुल सर. सूट को ड्राफ्ट किया कभी? सूट किसे कहते हैं? What is a suit? What is a petition? What is a complaint? You must have learned in the pleading part. So basic thing is, we have to focus on that how we will have to draft a complaint, how we will have to draft a petition. What is before drafting, just to take a glance on the documents. Reason being, we will have to initiate from the root. We need to focus on the root. If we focus on the root, we will also develop a learning of a judgment, latest judgment, wherein all previous judgments are being discussed. That will be benefit. You will get the benefit from that.
Now, I'll request Sri Rakesh Sehrawat ji, kindly give a big clapping to him. इस सभा में उपस्थित मेरे युवा साथियों, बार काउंसिल के सभी 25 सदस्य की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको यहाँ पे बार काउंसिल के प्रांगण का स्वागत करता हूं। एनरोलमेंट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होती है। डेट ऑफ बर्थ आपको सभी को याद होगी। इन द सेम वे डेट ऑफ एनरोलमेंट भी एक ऐसी डेट होगी जो आज तक मुझे अपनी याद है, 17 अक्टूबर 1990। 33 साल हो गए, समय का पता ही नहीं लगा कब चला गया। ऐसा लगता था अभी ज्वाइन किया है। ये प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें स्काई इज द लिमिट। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो कम है। पैसा बहुत है, उसके लिए एक चीज जरूरी है, पेशेंस। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं, जो हमने मुझे गवर्नमेंट में दूसरा तीसरे बार मौका मिला है। ये अब जनरेशन आ रही है, उनको पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए, दोनों चीजें। पैसा चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। हम भी यहाँ पैसा कमाने ही आए हैं, रोजी रोटी है हमारी। लेकिन जो जल्दी चाहिए वो एस्पेक्ट गलत है। उस जल्दबाजी में फिर कुछ गलतियां हो जाती हैं आप लोगों से। तो बार काउंसिल में आज आपको किस लिए बुलाया है, यही समझाने के लिए। 2 रीजन है बेसिकली। पहले तो ये था कि आप लॉ ग्रेजुएट हो गए, आपने फॉर्म भर दिया और आपका राइट है कि भाई आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। नाउ सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। The judgment of Supreme Court recently, Justice Sanjay Kishan Kaul has passed last year a judgment where he has observed that the standard of legal profession is day by day degrading. उसका कारण तो कुछ लॉ कॉलेजेस का है, कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्लासेस नहीं की हैं। तो उन्होंने एक डायरेक्शन ऑल ओवर इंडिया एनरोलमेंट कमेटी को पास की कि before enrolling any applicant on the roll of Bar Council of Delhi, the enrollment committee should satisfy themselves whether you have elementary knowledge of law or not. आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास ही अटेंड नहीं की होगी, हमें सब पता है इस बात को। कईयों ने कॉलेज गए, क्लास नहीं की, कई घर बैठ के डिग्री लेके आ रहे हैं। अगर आज सपोज आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है और आप एंटाइटल हो जाते हैं कल से कोर्ट में अपीयर होने के, और आपको 1-2 दिन में केस मिल जाता है, तो आप उसको कैसे करेंगे? कैन यू हैंडल दैट केस? अब पैसा तो सबको अच्छा लगता है, कमाना भी चाहिए, पर उसके लिए पहले नॉलेज तो गेन करो। आज तक जो पढ़ा है वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो। प्रैक्टिकल लाइफ में अब आपका ये नर्सरी केजी में जैसे एडमिशन होता है, आपने आज तक जो सीखा स्टेप बाय स्टेप, अब ये दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा। आपने जिस दिन कोर्ट में आओगे, सबसे पहला गुरु होता है मुंशी क्लर्क। क्यों? वो आपको फाइल उठाना सिखाता है, नोटिस कैसे बनता है वो सिखाता है, प्रोसेसिव फॉर्म कैसे भरा जाता है वो सिखाएगा। एक क्लैरिकल जॉब आप शुरू में सीखोगे। जब तक ये नहीं आएगा दूसरे स्टेप तक नहीं जा पाओगे। ड्राफ्टिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट्स, ये तो बहुत लेटर स्टेज पे है। हालांकि आज की जनरेशन उस लिहाज से मैं देखूं तो काफी शार्प है, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, नॉलेज तो सारी आप वहां से गेन कर लेते हो। लेकिन द वे यू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड कोर्ट क्राफ्ट, वो आपको सीखनी है।
इसीलिए आपको ये बुलाया गया कि एक तो आप गलतियां ना करें, जल्दबाजी में पैसे कमाने की वो क्या गलतियां हैं कि आपने श्योरिटी ले लीजिए, केस में आपके फेवर में करवा दूंगा। अब ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन क्लाइंट से पैसा लेने के लिए आपने हाँ भर दी, तो ये आपका कंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा। और जैसे बार काउंसिल को पावर है लाइसेंस ग्रांट करने की, उसी तरीके से लाइसेंस कैंसिल करने की पावर बार काउंसिल को ही है। सेकेंडली, आपने केस फाइल कर दिया, डेट पे नहीं गए, एडवर्स ऑर्डर हो गया क्लाइंट के खिलाफ, आपने कोर्ट फीस के नाम के पैसे ले लिए, कोर्ट फीस लगनी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट्स आती हैं 2022 में जिनको एनरोल किया है हमने, उनके खिलाफ ये कंप्लेंट्स हैं। तो इसलिए कोई जल्दबाजी अगर किसी को है पैसा कमाने की, तो वो इस प्रोफेशन में ना रहे, सहज पके सु मीठा बोले, परत दर परत आप सीखते जाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक रेपो बनेगा, समाज में जब आपको लोग सीरियसली लेंगे तब आपके पास काम आएगा। पहली कंडीशन काम आने की। दूसरी है काम आया है उसको एग्जीक्यूट करने की। एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाए तो चेन ब्रेक होगी, अगर कर दिया तो आगे आपको रेफर करेगा। तो क्लाइंट को आपने बड़े प्यार से डील करना है, बड़े मेहनत के साथ, उसके साथ लगन के साथ, उसको लगे कि हाँ वकील साहब मेरे केस में मेहनत कर रहे हैं, उससे पहले कोर्ट में पहुंचिए। ऐसा ना हो कि आवाज लग रही है, क्लाइंट आपकी बाट देख रहा है और अंदर वो बेचारा अंदर जाके घबराएगा जिसके सामने, वो कॉन्फिडेंस लूज करेगा। टाइम पे पहुंचिए। अगर आप आवाज लगने से पहले वहां पे होते हो तो उनको, एक क्लाइंट को ये लगता है हमें वकील साहब सिंसियर हैं, और वो आगे 10 जगह बोलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग अगर नहीं यहाँ पे बुलाएं तो आप लोगों को नहीं पता लगेगी। तो डे फर्स्ट से आपको नॉलेज में बार काउंसिल चाहती है कि आपकी नॉलेज में रहे ताकि गलतियां ना हो आपसे। दूसरा कारण, स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बता सकता है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बारे में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या प्रोसीजर है इसका, कितने मेंबर हैं? किसी को पता है? एनीवन पूरे हॉल में? नहीं पता, बताइए। वेरी गुड। तो आउट ऑफ मोर देन 150 आप लोग यहाँ पे हो, सिर्फ एक को पता है। जिस इंस्टीट्यूट के अंडर आप रजिस्टर हो रहे हैं उसके बारे में तो पता लगाना होना चाहिए आपको। ये 25 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। लास्ट इलेक्शन 2018 में हुआ था, 2023 5 साल पूरे हो गए, नेक्स्ट इलेक्शन भी होगा। और उसमें आप जो लोग AIB का एग्जाम क्लियर कर लेंगे वो सब वोटर भी होंगे उसमें। अब आपके सामने एक यक्ष प्रश्न होगा कि हम किसको अपना वोट दें, आपको तो कुछ पता ही नहीं। बार काउंसिल का मेन काम है वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट। जो भी एडवोकेट हमारे यहाँ पे एनरोल्ड है, हम उन सब का ख्याल रखें। कोई संकट का समय आए तो उनके साथ खड़े हों हम। तो आपको क्या पता हमने क्या किया है क्या नहीं किया। आपका वोट उसको जाना चाहिए, नहीं ये नहीं कहना आप वोट मुझे दो। नहीं, 25 मेंबर की एक टीम होती है, 25 मेंबर मिलकर जो काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 2018 में जब बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई, उससे पहले कोई सोशल सिक्योरिटी एडवोकेट्स की नहीं थी ऑल ओवर इंडिया। ये आवाज हमने उठाई जब मेरे बड़े भाई श्री RS गोस्वामी, जो इस कमेटी के चेयरमैन है, उस वक्त बार काउंसिल पूरे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे। तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएं और अपने एडवोकेट्स को एक प्रोटेक्शन दें। इन्होंने विज्ञान भवन में फंक्शन किया
और लकीली इनके साथ में उस वक्त वाइस चेयरमैन था। हम दोनों ने मिलके विद द हेल्प ऑफ 25 मेंबर्स हमने श्री प्रणब मुखर्जी को, जो महामहिम राष्ट्रपति थे उस वक्त, उनको चीफ गेस्ट बनाया और हमने कहा कि एडवोकेट्स को अगर उनका हाथ पैर चल रहे हैं तो उनको कोई समस्या नहीं, कल को कोई बीमार हो जाता है तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। इस सिचुएशन में क्या हो, मेडिकल की समस्या में क्या हो, तो हमने कहा कि कम से कम बार काउंसिल, स्टेट बार गवर्नमेंट को 5 लाख तक का लाइफ कवर देना, मेडिकल रिइंबर्समेंट देना चाहिए, और इन केस ऑफ डेथ 10 लाख का लाइफ कवर देना चाहिए। हमारी वो मांग चलती रही, हम संघर्ष करते रहे, और अल्टीमेटली 2019 में सिर्फ दिल्ली बार काउंसिल एक ऑल ओवर इंडिया ऐसी बार काउंसिल है जो अपने एडवोकेट्स के लिए ये स्कीम मुहैया करती है। और देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम निकली लॉयर्स के लिए। जैसे ही 2019 में स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उसके बाद कोरोना पीरियड आ गया। उसमें हमारे मोर देन 170 साथी हमें साथ छोड़ के चले गए। उनके घरों में गवर्नमेंट के माध्यम से हमने 10-10 लाख रुपए उनके घर पहुंचाए बैंक में। जो हमारे साथी हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उनके लिए 5-5 लाख तक का फ्री मेडिकल क्लेम गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराया, कैशलेस। और ये बात इसलिए जरूरी है, आप लोगों को ध्यान में रखना है इस बात का, कि एक्सेप्ट दिल्ली बार काउंसिल आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, ये सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं है एडवोकेट्स को। तो दोस्तों, ये आपका एक पहला एक फेवर है जो यहाँ पे आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से लेंगे, यहाँ एनरोल होते हैं। और आपका क्या, आप दोगे क्या? सिर्फ वन टाइम फी 14,500 में आपको इतनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध हो गई है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथी और पूरी बार काउंसिल के लिए आप जोरदार तालियां। अब ये तो कुछ हुई, मैंने कुछ शॉर्ट में बताया, क्योंकि मेरे बड़े भाई चेयरमैन साहब जब अपना वक्तव्य रखेंगे वो बहुत कुछ चीजें आपको शेयर करेंगे। मैं एक चीज पे बड़ा इंपॉर्टेंट हर मीटिंग में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो भी नए एप्लीकेंट्स आते हैं, कि डिसिप्लिन, जो मुकेश जी ने कहा, सेक्रेटरी साहब ने, अगर हमारा एडवोकेट क्लास एक ऐसी है जो पूरा समाज हमें देखता है कि भाई कोई भी आंदोलन देख लो, आप इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, वहां पे एडवोकेट की बड़ी अहम रोल रहा है हर आंदोलन में। तो हमें, जब हम समाज को मैसेज देंगे, और वो कब देंगे? जब हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन होंगे। हम अगर खुद ही लड़ते रहें, अपने एडवोकेट का जो स्टेटस है उसको मिसयूज करते रहें, तो समाज की नजरों में हमारी नेगेटिव इमेज बनेगी, और जो आज काफी हद तक है। बैंक हमें लोन नहीं देते हैं, कोई आप किराए पे मकान मांगने चले जाओ, मकान नहीं देने को तैयार कोई। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंडक्ट किया है समाज के, क्योंकि कोई परेशान होगा उस एक्सपीरियंस को 10 जगह बताएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है आपने जिससे एडवोकेट्स की नेगेटिव इमेज बने। ये हमारी एक आपसे लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। अगर कहीं पे भी इस किसी ऐसे कार्य में आप लोग इंडल्ज हुए, तो वो आपका कंडक्ट आएगा एनी एक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट। इस ग्राउंड पे भी बार काउंसिल आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, और ऐसे हुए हैं। एक इंसिडेंट था 30,000 में, जहां पे 2 लॉयर्स ग्रुप आपस में झगड़े हो गए और उसमें फायरिंग तक हुई। ये टॉलरेबल नहीं है, और बार काउंसिल ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया
और 25 एडवोकेट के लाइसेंस रद्द किए। इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि क्या होता है, जब एडवोकेट बन गए एक पावर तो आई जाती है, पुलिस आपको कुछ नहीं कह सकती, पड़ोसी आपका डरेगा आपसे। तो उस पावर को अगर मिसयूज ना हो, उसके लिए हम अपना एक 24 घंटे अपनी आई रखते हैं अपने एडवोकेट्स पे जो यहाँ पे एनरोल्ड हैं। और ऐसा कहीं भी अगर कुछ अब सोशल मीडिया पे होता है, कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, लोग वीडियो रिकॉर्ड करके और भेज देते हैं, क्लाइंट के साथ मारपीट, ये बहुत इंसिडेंट बढ़ रहे हैं ऐसे। इसलिए दोस्तों, मेरा ये आपको सुझाव है कि आप अपने प्रोफेशन में बड़े डिग्निफाइड तरीके से रहें। और इसमें जितना मैं बताया कि स्काई इज द लिमिट, और पैसा भी बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक रीजन बता देता हूं मैं आपको। जब क्रॉस एग्जामिन करते हो आप किसी विटनेस को, किसी केस में आपके डॉक्टर को करना है, किसी में इंजीनियर को करना है, किसी में सीए को करना है। एडवोकेट को हर फील्ड में उतना पता होना चाहिए जितना जिस फील्ड से विटनेस आया है। डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर से ज्यादा मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रॉस एग्जामिन द डॉक्टर। इंजीनियर कोई है तो उससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, सीए है तो उससे ज्यादा पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे करेंगे उसको। तो वो इसलिए लर्नर एडवोकेट कहा जाता है कि एडवोकेट को हर फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए। और जब वो गेन कर लेगा, ओनली देन ही कैन विथस्टैंड इन द कोर्ट एंड काउंटर द आंसर द क्वेश्चंस ऑफ जज एंड क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस। अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे सुझाव है कि इस प्रोफेशन जैसा प्रोफेशन कोई नहीं, रॉयल प्रोफेशन है। मर्जी आई हमने हाँ जी काम करना है, नहीं आई नहीं करना, अपनी मर्जी के मालिक हुए ना। सिंगल मैन आर्मी, हमारा ब्रेन अगर चल रहा है, हमारी अगर आवाज ठीक है, आंखें ठीक हैं, तो एक एडवोकेट इंडस्ट्री जो लगाते हैं उनको पता नहीं कैपिटल गेन और मैनेजमेंट एमबीए के स्टूडेंट्स चाहिए, लेबर चाहिए, उनको कितना झंझट होता है। एडवोकेट को सिर्फ अपना एक बॉडी मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए वो। और आप ताज्जुब करोगे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो पर पेशी 25 लाख 40 लाख, जितने भी नाम आप सुनोगे, लेट अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राम जेठमलानी, ये सब दिल्ली बार उनसे एनरोल्ड है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप भी उनमें से एक हो, पर उसके लिए अगर उनका आप देखो कितनी अथाह मेहनत की है उन्होंने। पैसा ऐसे नहीं मिलता। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप यू शुड टच द न्यू हाइट्स इन द योर प्रोफेशन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं। And I will request the Honorable Chairman to address the August gathering. Thank you, sir. Welcome all of you in the office of Bar Council of Delhi. My learned colleague, younger brother, former chairman of this council, Rakesh Sehrawat ji, Mr. Kumar Mukesh, honorary secretary of this council. आप लोगों को भी इन डिटेल राकेश जी ने प्रोफेशन के इंग्रेडिएंट्स, बार काउंसिल के इंग्रेडिएंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉफिट लॉस, मैं समझता हूं कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपको हर चीज समझाने की कोशिश की। आपको क्या महसूस हुआ जो राकेश जी ने और मुकेश जी ने कहा? आप लोगों को कुछ बात समझ आई या नहीं आई? पहले मुझे कुछ समझ आई नहीं है। और आपको यहाँ आना अपने आप
में अच्छा लगा या नहीं लगा? इस बात यदि ये चीज आज नहीं होती, एक माइनस कर दीजिए, यदि हम इसको करस्पॉन्डेंस की तरह से ले लेते हैं कि आपका फॉर्म आया, फॉर्म को कंसीडर किया, आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि आपका एनरोलमेंट आज नहीं अगली मीटिंग होगा, यू शुड कम इन पर्सन अलोन, अकेले अलोन आइए। उस इंटरव्यू में और आज कॉमन आप लोगों के साथ एक वार्तालाप करने में, उस समय के बाद ईश्वर ने साथ दिया तो आप वकील बन जाएंगे 5 मिनट बाद। ईश्वर ने कंडक्ट अच्छा रहा, तालियां अच्छी रही, तो स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही। अदरवाइज कंडक्ट नहीं रहा तो कह देंगे अगली मीटिंग आ जाए। लेकिन हमने इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर क्यों करना चाहते हैं? जैसे आपको राकेश जी ने सारा बताया वेलफेयर को लेकर, आधे लोग ऐसे हैं, हमारे एक एडवोकेट वेलफेयर फंड और है जो 2001 में बना था, और मैं उसके लिए खुशी और इस बात के लिए आप लोगों का तालियां चाहूंगा। उस एडवोकेट एक्ट को बनाने में श्री राकेश सहरावत जी के पिताजी बीएस सहरावत साहब इस समय इस बार काउंसिल के चेयरमैन थे। और उस एक्ट के अंदर लोगों को पता ही नहीं है, जब बीमार हो जाते हैं, मेरे पास इंडिजेंट का भी चेयरमैन हूं एंड डिसेबल्ड कमेटी को, उसमें राकेश जी भी, हम दोनों साथ हैं। जब हम वकील आते हैं पता लगता है मेंबर ही नहीं है। वो इतना बड़ा फंड है हमारा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उसमें अटॉर्नी जनरल मेंबर होता है कि यदि आप बीमार हो जाते हो और अनलिमिटेड, जैसे ये तो हमने गवर्नमेंट से 5 लाख तक के लिए आपके लिए सोचा था, वो अनलिमिटेड फंड है। कितने लोग थे हमारे साथी जो कैंसर से पीड़ित थे, जो लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उन लोगों के लिए हमने 31 लाख रुपया भी बार काउंसिल से अवार्ड किए। लेकिन यदि if you are not the member of that committee, how you can encourage it? पता नहीं होता, एनरोलमेंट कराया, घर गए, फार्म रख दिया, पता नहीं, अब तो कचहरी में सुबह से निकलते हैं। एक अभी बच्ची आई है नहीं आई, पिछली बार टेन्योर में जो पिछला था अपना मीटिंग, उसमें कौन कौन लोग नहीं थे जो आ जाए? खड़े हो जाओ सब लोग। मसला कौन है इसमें से? आप हैं। फर्स्ट टाइम अभी एक लड़की का नाम और आ रहा है, वो कहते हैं सर आई वाज बिजी इन द कोर्ट, कि विदाउट एनरोलमेंट हाउ आर यू बिजी? शी सेज कि दैट आई एम विद द सीनियर, मेरी सीनियर की अटेंडेंस लग रही है कि आपकी अटेंडेंस तो नहीं लग रही? तो बोल सर आई वाज वेरी बिजी, और पॉसिबिलिटी है शायद मैं आज भी ना हूं। तो राकेश जी वाली बात है, बैठिए सर, थैंक यू। इतने भी जल्दी मत करिए, सीनियर के लिए इतने भी डेडिकेट मत हो कि अपना एनरोलमेंट भी छोड़ दो आप लोग। इसका क्या महत्व है जो आप सोच नहीं सकते। यही एनरोलमेंट पूरे जीवन काल, आप डेट ऑफ बर्थ भूल सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ साल में केवल एक दिन याद रखनी होती है, जिस दिन यार दोस्त, पहले जन्मदिन कोई नहीं मनाता था, पुराने लोग बैठे हैं 20 साल पहले कोई जन्मदिन नहीं मनाते, क्योंकि जन्मदिन को ही मानते थे कि जन्मदिन मन रहा है तो हमारा एक दिन जीवन का कम हो रहा है, एक साल खत्म हो। आज जन्मदिन की ऐसी तैयारी होती है, मैं अपना 50वां जन्मदिन, अरे 50 जन्मदिन नहीं, 50 गए तुम बाहर, कुछ दिन के मेहमानों आगे की तैयारी करो। सालगिरह मनाते हैं शादी की, अब तो मंथली सालगिरह बनती है, 1 महीना चल गई तो समझो हम चल गए। पहले लोगों को पूछते थे, बोले भाई तुम्हारी शादी कब हुई थी? बोले हमारी शादी उस साल हमारे देश में ना अकाल पड़ा था, उस साल। आज हम कितनी जल्दी पर है, मैं उस पॉइंट पर, हम कितने जल्दबाजी है। 1 महीने की शादी की भी मैरिज, इधर से फादर इन लॉ आएंगे, उधर से फादर इन लॉ आएंगे, बोले क्या है आज बच्चे के 1 महीना हो गया पूरा। पहले याद भी नहीं होते थे, बच्चे हो लेते, बड़े माँ बाप को ये भी नहीं पता होता बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये भी पता। वो जीवन में 100 साल लोग जीते थे। आज यदि एक परिवार का सदस्य 55-56 साल की एज पे भी डेथ कर जाता है, तब भी घर वाले 3-4 साल उम्र बढ़ा देते हैं, नहीं हो गए होंगे 60 के करीब। कहाँ इंसान की वैल्यू? तो जल्दी जितना समय हमें आज मिल रहा है, एनरोलमेंट का मतलब समझिए, ये आपका वेपन है, ये आपका हथियार है, ये आपकी जिंदगी है। इसी से आप एडवोकेट बनेंगे, इसी से आप जज बनेंगे,
इसी से आप सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, इसी से आप कोठी बनाएंगे, इसी से कार खरीदेंगे। और उसको हम महत्व क्या दे रहे हैं कि आज मीटिंग एनरोलमेंट की बार काउंसिल ने बुला रखा है, देखो क्या होता है। अरे दोस्तों, कुछ नहीं होता। हम आपको, आपके माँ बाप को तो खुशी होगी कि आप एडवोकेट बन रहे हैं, और हमको ये खुशी होगी कि हम आपको एडवोकेट बना रहे हैं। जीवन आप कहीं भी रहेंगे, तुम्हें तो अपने इंडिविजुअल की खुशी है कि मैं एनरोलमेंट हो गया मेरा। हमें तो इतनी खुशी है कि आज आई हैव कंप्लीटेड 20 years इन द बार काउंसिल। जैसे मैं थर्ड टेन्योर आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट, एंड थर्ड टेन्योर में मैं 5 बार काउंसिल में एनरोलमेंट का चेयरमैन हूं, 5 टाइम्स। राकेश जी मेरे साथ हर एनरोलमेंट में हमने कहा हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें एनरोलमेंट चाहिए। हमें गर्व होता है, हम जो चीज आपको बताते हैं आज हमारे हाथ से बताए हुए लोग, जब हमको अटॉर्नी जनरल देखते हैं, हम उनको जब हाई कोर्ट का जज देखते हैं जो हमारे हाथ के एनरोल्ड है, नाउ दे आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द हाई कोर्ट। तैयार हो गए हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, कितनी खुशी होगी। आप अच्छे वकील बनेंगे, हमारा क्या जाएगा, हमें खुशी होगी। लेकिन जो राकेश जी ने कहा कि यदि आपके खिलाफ यदि कंप्लेंट आएगी और हम मेंबर होंगे बार काउंसिल में, उस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से, ये हमारा लक है कि आप सब लोग बैठे हैं और हमारे चेयरमैन साहब निकल के जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आई रिक्वेस्ट कि आप सब, यू ऑल आर लकी, यू विल गेट द ब्लेसिंग ऑफ आवर चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। प्लीज गिव बिग हैंड टू मिस्टर। बैठिए आप लोग। आज अब आप, जो मैं कह रहा था कि देयर वाज सम चांस कि शायद एडजॉर्न हो जाए, लेकिन नाउ यू आर लकी सिंस द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल इज हियर, श्री के मनन, सीनियर एडवोकेट एंड नाउ इज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। वो आज मौजूद हैं, जा रहे थे अपना काम करके। जोरदार तालियों से एक बार अब 100% चांस हो गए कि आप आज वकील बन ही जाए। थोड़ा सा खतरा, मैं सोच रहा था एडजॉर्न कर दूं, लेकिन जब चेयरमैन होंगे तो मैं ये अधिकार उनके पास ही दूंगा, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और आप पिछले 4 टेन्योर कंप्लीट बार काउंसिल में कर चुके हैं, उससे पहले 5 थे। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके साथ 2006 से लेकर और 2008 के पीरियड में, आप जब चेयरमैन थे, मैं आपके साथ सेक्रेटरी रहा, और जितना वकीलों के लिए वेलफेयर के लिए किया जा सकता है हम सब ने मिलकर काम किया। मैं टॉपिक पर आप लोगों के साथ आ रहा हूं कि जब आपका कोई एक्ट ऐसा होता है, जब बार काउंसिल कॉग्निजेंस लेती है, उस समय हम लोगों को उतना ही कष्ट होता है जितना आपके यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा। कोई आप में से एमबीबीएस में गया 12th के बाद, कोई आप में से बीटेक गया, कोई होटल मैनेजमेंट के अंदर गया, आप वकालत की तरफ आए। लेकिन आ तो गए, यू ऑल आर लकी, यू विल बी लकी जस्ट आफ्टर एनरोलमेंट, बट केवल आपको वकील बनना है या अच्छा वकील बनना है? क्वेश्चन समझ में आई मेरी बात? वकील तो आप में से, चाहे आपने एनएलए से किया, चाहे क्लैट से किया, चाहे आपने आईपी से किया, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, हम आप में कोई कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। यदि हम अभी एक एक क्वेश्चन पूछना करें तो पता लगेगा कौन कहां से। लेकिन बार काउंसिल इज गिविंग द रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू इन द सेम मैनर। वी आर इनरोलिंग ऑल ऑफ यू इन द सेम मैनर। इसका मतलब हम इज्जत और सम्मान आपको बराबर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, उनको सुविधाएं होती है। आप लोगों को क्या करना है? हमें उनसे 4 गुनी ज्यादा, 10 गुनी ज्यादा मेहनत करनी है एक अच्छा वकील बनने। केवल आपको एनरोलमेंट लेना है, जोर से बताइए मुझे बात, एनरोलमेंट लेना है, अच्छा वकील बनके यहां से जाना है। मनन साहब सीनियर एडवोकेट हैं क्रिमिनल के, शायद आपने सुना होगा, बहुत टॉप केसेस इंडिया के जितने भी हैं उनमें आपका नाम होता है।
ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे बार काउंसिल के मेंबर हैं, हमें उनसे एज ए सीनियर काफ़ी सीखने को मिलता है। राकेश जी ने मेरे लिए कहा कि गोस्वामी जी सीखने को मिलता है, हमें उनसे ये क्रम है। आज से पहले जो एनरोल्ड हुए वो आपसे सीनियर हो गए, जो कल एनरोल्ड होंगे वो आप उनके सीनियर हो गए। तो ये क्रम है, एक प्रथा है, एक सभ्यता है, एक इज्जत है, एक सम्मान है। हमारे यदि एक दिन का भी सीनियर व्यक्ति होता है तो हम उसको रेस्पेक्ट पे करते हैं, हम अदालत में जाते हैं उसके लिए चेयर छोड़ते हैं। यही क्रम आपको रखना है। और सेकेंडली मैं जो कहना चाहता हूं, यू ऑल आर लकी यू आर गोइंग द एनरोल्ड बाय बार काउंसिल टुडे। व्हाई? Within 10 minutes you will appear in Supreme Court, 10 minutes within is High Court, 5 minutes in the District Court। कोई डिफरेंस नहीं दिल्ली के अंदर, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो झारखंड से एनरोल्ड हो रहा है, जो उड़ीसा से एनरोल्ड हो रहा है, क्या वो कह सकता है आई एम द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आप क्या महसूस करते हैं अपने आप को यदि दिल्ली से एनरोल्ड होते हैं तो? जितनी सोशल सिक्योरिटी की बात करी जो दिल्ली के अंदर है, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड के अंदर कहीं। इसलिए हमें गर्व है इस बात का कि हम भी बार काउंसिल दिल्ली के एनरोल्ड हैं, और उससे ज्यादा गर्व इस बात का है कि आज हम आपको एनरोल करेंगे। लेकिन कंडीशन एक साथ, ओनली वन कंडीशन, एनरोलमेंट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब काम होंगे। लेकिन साहब ये चेयरमैन कभी भी मिले हम किसी फंक्शन में, कार्यक्रम में, कोर्ट एक सेकंड निकालकर एक दूसरे से एक परिवार की तरह हम एक दूसरे का सम्मान करें, यही हमसे आपसे अपेक्षा है। आप देंगे नहीं देंगे जो बताइए, केवल एनरोलमेंट की वजह से कह रहे हैं आप? ऑनेस्टली कह रहे हैं। कभी हम कहेंगे मैं गोस्वामी बोला, बोला वही गोस्वामी करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। आप देखेंगे, हम करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे तो ईश्वर आपको नमस्कृतम चत्वारम वर्ध्यते, भागवत की श्लोक है, नमस्कृतम चत्वारम वर्ध्यते आयु विद्या ईश्वर। यदि इंसान किसी का सम्मान करता है, अपने से बड़े का करता है, अपने से बराबर का करता है, तो आयु विद्या यश और बल चारों चीज बिना कहीं भी जाए। कैसा लगा आप लोगों को? पहले क्लियर बताइए। जो याद रखेंगे एक दूसरे को, हैं? तो आज वकील बना दे। परमिशन में कहूंगा चेयरमैन साहब से कि वही आप लोगों को अपने शब्दों से मैं चेयरमैन साहब से आपको ब्लेसिंग दिलवाता हूं। और ये हम ऑल आर लकी कि वी आर ही विद अस। और बिना कहे, जैसे कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो सब काम अच्छे होते हैं, तो जोरदार तालियों से उपस्थित, आवाज आ रही है? मंच पर उपस्थित एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री आर.एस. गोस्वामी मेरे छोटे भाई हैं। बार काउंसिल के इसके चेयरमैन भी रहे हैं पिछली टेन्योर में, और इसी टेन्योर में राकेश शेरावत साहब, राकेश शेरावत साहब एक ये हमारी काउंसिल का, जैसे मोदी जी का ना 3 बार चीफ मिनिस्टर, तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर तो बनी है 17 साल, लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनी। उसी तरह हमारी बार काउंसिल में एक राकेश शेरावत साहब के पिताश्री कई बार मेंबर बार काउंसिल रहे हैं और इस बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। कुमार मुकेश पहली मरतबा चुनकर आए हैं और ये हमारे सेक्रेटरी हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब बार काउंसिल का अब चुनाव होगा तो तुम्हारे दर पे हम सब फिर जाएंगे। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन क्या है क्या नहीं है।
हर सांस, खासकर लड़कियों की तरफ मेरा इशारा है, हर सांस कभी बहू होती है। हम भी कभी बहू थे, अब सास बन गए। मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाएगा क्योंकि मेरी थोड़ी कान की प्रॉब्लम है, साइनस की। तो आज मैंने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में डेटे ली है। मुझे नहीं पता था कि आज ये पहले बता देते थे कि मीटिंग चल रही है, मैं तो किसी और काम से आया था। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी बात काउंसिल के 25 सदस्यगण से की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप खूब तरक्की करो। कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनेंगे, कौन से एडिशनल सेशन जज बनेंगे, 20, 25, 30 साल बाद शायद हम होंगे, 30 साल बाद या नहीं, आप में से कौन हाई कोर्ट जज बन जाएगा, भाग्य का कुछ नहीं पता होता है। जो समय है ना, मुझे नहीं लगता गीता किसी ने पढ़ी है आप में से, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक गांव से संबंध रखता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। जब हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे तो हमारी माँ रामायण, गीता चूल्हे पे गांव में, अब तो ये आपको लोगों को गैस फूस का ही पता, चूल्हे देखे ही नहीं होंगे। जो गांव का कोई होगा राजस्थान में या हरियाणा वाला, उसको चूल्हे का पता होगा थोड़ा बहुत। बेटा 4 नहीं, हाथ 5 ने उठाए हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि चूल्हे पे माँ रोटी बना रही है, साथ में रामायण गा रही है, हमें बता रही है। उसी तरह गीता का सार, गीता में एक शब्द में 18 अध्याय का 18 चैप्टर्स हैं गीता में। लॉ में आप रोज आईपीसी, सीआरपीसी थक जाओगे पढ़ पढ़ कर, अभी तो आपका शुरुआत है। हमें भी ऐसे लग रहा है, 1980 में आया था मैं, 19 नवंबर 1980 को मेरा एनरोलमेंट हुआ, ऐसे लगा कल की बात है। समय, गीता का सार है, टोटल 18 रहेगा। समय, जब आपका समय अच्छा है तो सारी दुनिया साथ है आपके। अगर समय खराब आ गया तो सगा भाई, वो दोस्त, जिगरी भी साथ छोड़ जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको। और दूसरा समय, समय का सदुपयोग करना। आपके माँ बाप को आशा होगी कि हमारी बच्ची, हमारा बेटा लॉयर बनके थानों में मत घूमना। कई लॉयर्स की आदत है, फिर बेइज्जती होती है, कांस्टेबल आपकी बेइज्जती कर देता है। फिर कई बार कोई दुर्घटना होती है, सारी बारों को फिर स्ट्राइक पर जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कल को बार का सिर। और गलती ऑलमोस्ट 99.9 लॉयर की ही होती है, लेकिन फिर भी सिस्टम हमारा मुकाबला नहीं इस फ्रेटर्निटी का कर पा रहा है, कर ही नहीं पाता। क्योंकि चट्टान की तरह ये फ्रेटर्निटी इकट्ठी और यूनाइटेड होती है, इसका न पुलिस मुकाबला कर पाती है, न एडमिनिस्ट्रेशन मुकाबला कर पाती है। लेकिन अब समय बदल गया है, डे बाय डे। पहले रेड लाइट हम पार करते थे ना, अरे वकील साहब है चल जाओ, अब वकील साहब जिधर से गुजरते थे सलामी बजती थी, लेकिन अब नहीं, चूंकि हमने अपनी इज्जत खुद घटाई है। मैं आशा करूंगा कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपका, आपके माँ बाप का, या इस फ्रेटर्निटी का, या इस काउंसिल का सिर झुके। कोर्ट में जब जाओगे तो सिर झुका के एंटर करना, सिर झुका कर ही बाहर निकलना। मेरे बारे में कोई पुराने लोग बताएंगे, ये बताते मैं तो थोड़ा बदतमीज लॉयर था अपनी जवानी में, पूरा तो अभी भी मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे को 44वां साल लगा हुआ वकालत में, 44th ईयर।
पहली मरतबा मैं जब चेयरमैन बना था तो इनके पिताश्री ने बनवाया मुझे चेयरमैन 2007 में बना था पहली मरतबा। दूसरी बार 2014 में तो भी इन्होंने बनवाया था, ये दोनों बात की बात है। अब भी बनाया तो इन्होंने 25 के पहले में मेरे ख्याल में तीनों बार ऑलमोस्ट मैं यूनानिमस था, इस बार भी यूनानिमस था, 2000 में भी यूनानिमस बना हूँ। और मैं आज भी जो आने वाला चेयरमैन है उनसे मेरी मीटिंग हुई है, उनको कह के आया हूँ कि चल तू बन, और वो बनने को तैयार कि आप चलो, लेकिन मुझे उसको बनाना है। शायद इनमें से भी बैठा एक आदमी और बन जाए, प्रयत्न है मेरा। लेकिन चेयरमैन में कुछ नहीं रखा है, वाइस चेयरमैन में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आपका किरदार होगा, आपका अपना व्यक्तित्व होगा, आपका अपना डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन होगा, वो जो रखेंगे आप। मेरे से अच्छे भाषण मैं कोर्ट में तो जो मर्जी बुलवा लो, टिप्स में मेरे सेक्शन रटे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी हिंदी संस्कृत बोलने वाले हमारे गोस्वामी जी। उनकी वाणी में इतना मिठास है, इतने अच्छे श्लोक बोलते हैं, क्योंकि ये मथुरा के नंदगांव के भगवान कृष्ण की नगरी के लोग, तो आपको पता कैसे दिखते हैं। मैं अब देख रहा हूँ, आज मैं को नहीं पता था कि अभी तक ये एनरोलमेंट हो रहे हैं। आप मेरे घर सर्विस से आई, आप फ्रेशर नहीं हो, सर्विस में थे पहले, बिजनेस करते थे पहले, तो अब क्या सूझी इस उम्र में? 94 के बाद स्टडी नहीं कर पाया, और मेरे साथ पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मेरे साथ के जो सारे ना एडवोकेट बन गए, और उसमें से कुछ एक दो जज भी बने। जज भी बन गए, और रिलीफ नहीं देंगे आपको, कहीं दिमाग नहीं होगा, इनका दिमाग खराब हो जाता है वहाँ बैठ ग्रुप में बैठता था, हैं? जब मैं उनके ग्रुप में बैठता था तो बड़े फूफा करते अपनी होंगे, प्रोफेशन की बातें करते थे, तो आपका दिल करा तो मैं भी, और मेरी 94 से एक इच्छा पेंडिंग थी। तो इच्छा पूरी हो गई आज, हैं? गोस्वामी जी, शराब साहब इच्छा पूरी करो आज। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, मैं बुजुर्गों के खिलाफ नहीं कभी भी होता, लेकिन यंगस्टर के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा चीज़ रहती है, इसलिए यंगस्टर वोट भी बहुत मुझे देता है। ये शरावत साहब मेरे सपोर्टर रहे हैं, ये सपोर्टर रहे हैं, जब ये तो अपने पिताजी के लिए वोट मांगते थे, ये मेरे लिए वोट मांगते थे 1998 में। मैं 1995 से मेंबर बार काउंसिल में को आप हुआ पहले 3 साल, जो वो प्रेसिडेंट थे तब मानते थे, और मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पटियाला हाउस बार में, मैं 4 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी से मेरा कीड़ा है अंदर राजनीति का। चलो इन बातों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं 2 बातें करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। डिसिप्लिन, मैं नहीं कहूँगा कि बहन इनको बहनें मानो, कईयों की गर्लफ्रेंड भी बन जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन मर्यादा में रह के कुछ भी करना। सिर्फ बैंड जब पहन लिया ना आपने, तो इसका सिर मत झुकाना। कई बार लोग देखे बैंड पहन कर मार्केट में घूमते हैं, वो मत काम करना। ड्रेस पहनकर कभी मत जाना वहाँ, क्योंकि इस कोड की कदर तब तक है जब तक आप बनाए रखोगे। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो ये है कि कोर्ट में जब आप बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, आपके सीनियर आते हैं, प्लीज उनको इमीडिएटली खड़े हो और उनको अपनी सीट पे साथ बैठिए। जैसे मैंने कहा ना, आज जूनियर है कल सीनियर होंगे, फिर आपको चेयर मिलेगी, जो आज चेयर आपने उसके लिए छोड़ी है, कल जब आप सीनियर होंगे तो वो चेयर आपको दूसरे देंगे। जो 2-3 चेयर मेन बातें बेटा, बाकी तो आप सब सीख जाओगे। ऐसे समुद्र में हम आपको फेंक देंगे आज, खुदे तैरोगे, खुदे किनारे पे जाओगे। ना सीनियर कोई अपनी जेब से कुछ देता है,
2-4 सीनियर 6 हैं जो कहते लो विचार फाइलें ले लो, अब सीनियर अब, लेकिन ज़्यादातर नहीं देते। वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जूनियर ही हमें केस ला के दिए, मोस्टली यही होता है। तो बेटा पढ़ो, फूलो, खुश रहो। और आज आपका, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ इनकी परमिशन से मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मुझे इतनी आप थोड़ी सी पावर दे दो। पूरी पावर है सर। आज किसी का कोई इंटरव्यू नहीं है, जाओ आप सारे एनरोल। आप लोग सभी बैंक बांध गए, इसीलिए के लिए तो पढ़ाई की थी आप लोगों ने। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे